Good morning, everyone. Today we are going to start our exercise of the chapter Tracing Changes Through a thousand years. Okay. Your first question is state whether true or false. First, we do not find inscriptions for the period after 700. What is the meaning of inscriptions? I already told you. Something which is written on the walls is known as inscriptions. Okay. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या हम 700 जो 700 का पीरियड था उससे उसके बाद हम इंस्क्रिप्शंस हमें नहीं मिलते हैं. नो, इट्स फॉल्स. हमें बहुत से इंस्क्रिप्शन 700 जो 700 ईयर था उसके बाद भी मिलता है. ठीक है. Second, the Marathas asserted their political importance during this period. जो मराठास थे उन्होंने assert किया, claim किया उनकी political importance during this period. Which period? हम इस chapter में हमने कौन से period की बात की है? We have talked about the period from 700 to 1750. ठीक है. तो मराठास ने क्या पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इस टाइम पे असर्ट की थी, क्लेम की थी? यस, हमने पढ़ा था रीजन एंड एम्पायर में कि बहुत सी डायनेस्टीज आई थी. ठीक है. बहुत से रीजनल रूलर्स आए थे और उन्होंने बहुत से लैंड को एक्सपेंड भी किया था. पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, सोशल इंपॉर्टेंस उनकी रेज हुई थी. सो इट इज ट्रू. Now next, forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agricultural settlements. फॉरेस्ट dwellers जो लोग वन में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, उनको बहुत बार क्या होता था, उनको अपने लैंड से हटा दिया जाता था एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के लिए. तो क्या ये सही है? यस, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत से लोगों को क्या किया जाता था, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको अपनी लैंड से हटा दिया जाता था. ठीक है. नेक्स्ट, सुल्तान घियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर. नाउ घियासुद्दीन बलबन जो थे, एक सुल्तान जो आए थे, क्या उन्होंने असम, मणिपुर और कश्मीर आपका नॉर्थ में है, इंडिया के नॉर्थ में है. असम और मणिपुर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. क्या उन्होंने कंट्रोल कर लिया था? नो. घियासुद्दीन बलबन ने मोस्टली सेंट्रल इंडिया को क्या किया था? कैप्चर किया था, कंट्रोल किया था. उन्होंने असम, मणिपुर और कश्मीर को नहीं किया था कैप्चर और कंट्रोल. राइट. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks. Archives are places where dash are kept. Now, what do you mean by the term archives? Archives क्या होते हैं? ऐसी places जहाँ पे documents और manuscripts को रखा जाता है, just like library. ठीक है. जहाँ पे manuscripts और आप documents रखते हो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो archives. तो archives are the places where manuscripts are kept. Mostly क्या रखते हैं? Manuscripts. Dash was a 14th century chronicler. Chronicler का मीनिंग आपको ऑलरेडी बताया है मैंने. Now, so who was the 14th century chronicler? Chronicler का मीनिंग मैंने आपको बताया. It means historian. Okay. Ziauddin Barani was a 14th century chronicler. Next question is dash, 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 dash and dash were some of the new crops introduced into the subcontinent during this period. Potatoes, chilies, corns, tea and coffee were some of the new crops introduced into the subcontinent during this period. Now during this period का meaning है we were talking about 700 year to 700 to 715. So this period means we were talking about the period of 700 to 750, right? Now, your next question is define the term cartographer. Now, what is the meaning of cartographer? Now, who will answer me? You all are able to see the screen. So, who is a cartographer? A person who makes map is known as cartographer. Now, your next define is archive. What is the meaning of archive? So, what is the meaning of archive?
A place where documents and manuscripts are stored is known as archive. Okay. Your next question is define the term habitat. Habitat का meaning क्या होता है? Habitat क्या होता है? It refers to the environment of a region and the social and economic lifestyle of its residents. एक ऐसा environment, एक region का, एक area का ऐसा environment जहाँ पे residents की, लोगों की वहाँ lifestyle कैसी है, उसको हम habitat बोलते हैं. Your next question is define the term patron. I already told you. An influential wealthy individual who supports another person is known as patron. एक ऐसा person, एक ऐसा wealthy person जो किसी दूसरे person को support करता है उसके work में, उसको हम क्या बोलते हैं? Patron बोलते हैं. Okay. Now your next question is answer the following questions. Who was considered as a foreigner in the past? According to the medieval period, any stranger who did not belong to a certain society or culture and was not a part of that particular village or community was considered as a foreigner. ऐसा कोई भी person, medieval period की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी person, ठीक है, जो किसी सर्टेन सोसाइटी या उनके कल्चर का पार्ट नहीं होता था या फिर उनके विलेज में नहीं रहता था, उनकी कम्युनिटी का नहीं होता था, उनको हम मेडिवल पीरियड में पास्ट में फॉरेनर बोलते हैं. बट नाउअडेज अ फॉरेनर इज समवन हु इज नॉट एन इंडियन. फॉर अस अ फॉरेनर इज समवन हु इज नॉट एन Indian. Okay. Your next question is list some of the technological changes associated with this period. This period again 700 to 1715. The period of 700 to 1715. Following are some of the technological changes that were associated with this period. And what are these technological changes? The Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, firearms in combat. These were some of the technological changes associated with the medieval period. The next question is what does the term pan-regional empire mean? Pan-regional empire का meaning क्या होता है? A pan-regional empire is referred to an empire which is expanded over several regions of diverse cultures, geography and religion. एक ऐसा empire और एक ऐसा region, ठीक है, जो बहुत से रीजन में एक्सपेंड कर देता है. ठीक है, जैसे सपोज आपका पहले जो एरिया था, एक सपोज खाली राजस्थान था, ठीक है, अब आपने क्या किया, उसको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक भी एक्सपेंड किया किसी एम्पायर में, और वहाँ के कल्चर, वहाँ की ज्योग्राफी को भी उन्होंने समझा, ठीक है, एक्सेप्ट किया. दैट इज नोन एज पैन रीजनल एम्पायर. For example, like the dynasties of the Mughals, Cholas, Khaljis and the Tughlaqs. These were some of the examples जिनके pan regional empire थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स. हिस्टोरियंस मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखते हुए या यूज करते हुए क्या डिफिकल्टीज फेस करते थे? ड्यूरिंग द पास्ट द हिस्टोरियंस फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन यूजिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स ड्यू टू द लैक ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. पास्ट में हिस्टोरियंस जो थे बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करते थे, जैसे कि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो हिस्टोरियंस को क्या करता था, हैड टू स्क्राइब द मैन्युस्क्रिप्ट्स. मतलब जो स्क्राइब होता था वो क्या करता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथों से लिखता था. ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता था वो हाथों से लिखता था, कॉपी करता था, और उस कॉपी करने में क्या होता था, बहुत बार न्यू चेंजेस आ जाते थे. हो सकता है वर्ड्स इधर उधर वो लिख देते थे. ठीक है, तो कॉपी करना एक इजी जॉब नहीं था. ठीक है, स्मॉल डिफरेंसेस आ जाते थे, मिस्टेक्स आ जाते थे, और बहुत बार क्या होता था, सेंचुरी इतने टाइम पीरियड में कॉपी करते 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 बहुत से चेंजेस आ जाते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स में, तो जो ओरिजिनलिटी थी वो नहीं रहती थी. एज अ रिजल्ट वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in what ways has the meaning of the term Hindustan changed over the centuries? हिंदुस्तान जो टर्म है कैसे बहुत इतने टाइम पीरियड में कैसे चेंज हुआ, उसका जो टर्म का मीनिंग था वो कैसे डिफर करता है डिफरेंट सेंचुरीज में. The meaning of the term Hindustan has eventually changed over the past centuries
Today, the term Hindustan is referred to denote India, but during the 13th century, the term was used by Minhaj-e-Siraj, a chronicler. Minhaj-e-Siraj एक chronicler थे for the lands that belonged to the Delhi Sultan. मिनाज-ए-सिराज क्रॉनिकलर ने हिंदुस्तान टर्म किसके लिए यूज किया? जो दिल्ली सुल्तान की जो लैंड्स थी उनके लिए उन्होंने यूज किया था. ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग द 14th century. नाउ 13th century में मिनाज-ए-सिराज ने क्या किया था? दिल्ली सुल्तान के लिए यूज किया. 14th century, the term Hindu was used by Amir Khusro to refer the culture and people of the Indus River. जो भी कल्चर था और पीपल जो इंडस रिवर के आसपास लोग रहते थे उनके कल्चर को और उनके लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए आमिर खुसरो जी ने, जो पोएट थे बहुत फेमस, उन्होंने यूज किया हिंद. Next, during the early 16th century, Babur used the term Hindustan to describe the culture, geography and fauna of the inhabitants of the subcontinent. 16th century में बाबर कौन थे? अकबर का नाम सबने सुना है. अकबर के दादा का नाम बाबर था. उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड यूज किया यहाँ के कल्चर को, ज्योग्राफी को, यहाँ के जो एनिमल्स थे, फाउना बोलते हैं ना, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, एनिमल किंगडम है, उसको हम फाउना बोलते हैं. तो इस कॉन्टिनेंट की जो भी ज्योग्राफी थी, यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ का जो एनिमल किंगडम था, एनिमल स्पीसीज थे, उनके बारे में, उनके लिए यूज किया था हिंदुस्तान. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड. जातीज के जो अफेयर्स थे, ठीक है, जातीज के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी या जो भी, वो कैसे रेगुलेट किया जाता था. ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड सेवरल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस एमर्ज्ड अमंग द पीपल, ओके, which led to the introduction of जातीज. बहुत से सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस आया जिससे कि जातीज, इंट्रोडक्शन ऑफ जातीज, मतलब हम बोलते हैं ना ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, कास्ट सिस्टम, सब कास्ट सिस्टम जो होता है, तो जाति सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ, कास्ट सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ. पीपल वर रैंक्ड on the basis of their occupations and backgrounds. people को कैसे रैंक किया जाता था? उनके occupations और उनके backgrounds के according, कि वो काम क्या करते हैं, वो किससे, कहाँ से belong करते हैं, उसके basis पे उनको रैंक किया गया. The affairs of jatis were regulated by an assembly of elders known as jati panchayat. in some areas जितनी भी problems होती थी, कुछ भी होता था problem, तो उसकी जो भी affairs होते थे उसको कौन regulate करता था? जाति पंचायत regulate करता था. The jatis were required to follow the rules of their village, which were governed by a chief. जो जातीज थी, जो रूलर्स होते थे विलेज के, उनको फॉलो करने होते थे सारे रूल्स. ठीक है. और विलेज को हमने पढ़ा कौन गवर्न करता था? चीफ. ठीक है. What were some of the major What were some of the major religious development during this period? क्या क्या थे? Worship of new deities, construction होने लग गई temples की. The growing importance of Brahmins की importance बढ़ने लगी. Emergence of idea of भक्ति increase हुआ. ठीक है. और new religions occur होने लग गए इस period में. ठीक है.